There's one more thing about Google Ads, but at the end of the session, I'll tell you what is that. So on Monday, where we have skipped the topic, we will start from there only. And before that, we will also revise the previous one as well. So on Monday, we were doing the search ad and we were on the keyword section, how to select the keywords, how to put the keywords through which our ad will work on Google perfectly, or the optimization from the Google side will do better and better for our respective ad. So this is our Monday ad where we will stop at the keyword section. So we will continue with that campaign as well. So we will click on this particular campaign, Stu Intern search ad. Okay, first of all, we will revise the previous section. Then we will switch to our keyword portion. That is an ad set section. So as I told you here, the search network ad bidding depends only on clicks, not on the conversion. Okay. अब यहाँ पे किस किस को पता है what is the difference between the reach and the impression? We will already discuss on this topic, reach and the impression. हेलो Yes. मैम इम्प्रेशन मतलब वो एडवर्टाइज कितनी बार सामने आया? Exactly. यस. And reach? नहीं पता मैम. That's okay. Reach means कि whenever you run your campaign, so in that scenario, जब भी आप कोई अपने audience को, you will target that particular audience or location or anything you will target for your particular campaign. At that time, when your campaign run on a Google, that is reach, means किन किन तक वो पहुंचा है, okay? And impression, as he said, कि कितनी times आप लोगों को वो particular campaign show हुआ है, that is your impression. Second thing, I think reach is number of people, right? Exactly. कितने लोगों तक पहुंचे, that is number of people, and number of times is impression. हाँ. अब बात ये आती है leads. See, हमेशा याद रखिएगा regarding the Google ad, search ad का जो objective है या फिर उसका जो purpose है regarding कि हम लोग search network ad, why we doing the search network ad on Google, the purpose of search network ad is कि जितना ज्यादा traffic, engagement and awareness regarding our business, जो भी आप particular business को promote करना चाहते हो, उसके लिए search ad is the best option, because search ad से एक initiative मिल जाता है आपके visitors को कि this is a business जो आपके मतलब respective business की ये arts and craft का business है, कि आपका real estate का है, कि आपका cosmetics का है, and XYZ जैसा भी आपका business हो. तो सर्च एड बेसिकली जस्ट हेल्प करता है आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपकी जो एड है, एड जो आप बिल्डअप कर रहे हो सर्च नेटवर्क पे, उसको रीच करने के लिए. तो बेसिकली सर्च नेटवर्क हेल्प करता है रिगार्डिंग योर बिजनेस टू ग्रो रिगार्डिंग ट्रैफिक, अवेयरनेस एंड टारगेट ऑडियंस. रेस्ट लीड जनरेशन, बिकॉज सी कभी कभार इंटरव्यूज में ना दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि फॉर द लीड व्हाट टाइप ऑफ बिडिंग वी विल यूज, फॉर द डिस्प्ले नेटवर्क एड व्हाट टाइप ऑफ बिडिंग यू कैन यूज, फॉर सर्च नेटवर्क एड व्हाट टाइप ऑफ बिडिंग यू कैन यूज. तो फॉर द सर्च नेटवर्क एड, clicks is the perfect bidding type, as we already select over here. See, bidding. For the leads, conversion, if you want to write, you can write either. अगर आप लोग अपने वो चार्ट जो हमने आप लोगों से शेयर किए हैं व्हाट्सएप पे, आप उस पे भी उसको देख सकते हो. अगर आप लोग को अपने सेल्फ ओन लैंग्वेज में अगर लिखना है, जैसे कि आप लोग को समझ में आए, तो आप लोग उसको भी एक नोट डाउन कर सकते हो. सो बेसिकली सर्च नेटवर्क एड इज बिडिंग टाइप इज क्लिक. हेलो मैम. हेलो हाँ सॉरी मैम, मैं आज ही ज्वाइन हुआ हूँ, तो वो
तो वो सब आप फिर से शेयर कर सकते हैं, मेरा ये पहला हम वो शेयर कर देंगे, फिर से रीशेयर कर देंगे, कोई टेंशन नहीं। सॉरी और ये फॉर यहाँ पे द कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये हम फिर से रिवीजन करा रहे हैं, आप एक बार इस पे भी गो थ्रू इट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ओके हाँ, मैम। अब देखिए, सर्च नेटवर्क के लिए दैट इज बिडिंग टाइप इज क्लिक, लीड के लिए दैट इज कन्वर्जन, डिस्प्ले के लिए दैट इज इम्प्रेशन, CPM कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन है, कॉस्ट पर इम्प्रेशन आप कह सकते हो उसको। एंड फॉर यूट्यूब में लिटिल बिट आपके अब बोल सकते हैं डाइसी रहता है, दैट इज कि आप कन्वर्जन और इम्प्रेशन डिपेंड कि आपको आप कह सकते हो आपको किस तरह का कैंपेन चाहिए, व्हाट टाइप ऑफ ऑडियंस और कैंपेन यू वांट टू रन एट दैट टाइम ऑफ पीरियड, आप उस कैंपेन पे अपनी बिडिंग को सेलेक्ट कर सकते हो। तो इसमें तो डाइसी रहता है, डिपेंडेंसी रहती है। मैम फॉर ट्रैफिक कैंपेन, ट्रैफिक कैंपेन आपका डिफरेंट आ जाता है, दैट इज ऑन सोशल मीडिया। और जो आप सर्च नेटवर्क ऐड आप कर रहे हो ना, ये आपका ट्रैफिक इनडायरेक्ट वे में ट्रैफिक कैंपेन का ही काम करेगा। मैम सो फॉर यूट्यूब विच टाइप ऑफ कैंपेन विल रन ऑन अ गूगल एड्स? Google Ads में on YouTube for there are two type of ad, that is skippable and non-skippable ad, that are 5 seconds of ad are skippable ad, जैसे कि 5 seconds बाद आपको skip ad दिख जाता है ना, तो that type of ad, और a non-skippable ad that may be between 15 to 30 seconds of ad. There are two type of ads on YouTube. तो बट उसमें बिडिंग का आपका थोड़ा डाइसी रहेगा, आपको इंप्रेशन चाहिए कि आपको कन्वर्जन चाहिए, तो वो रहता है। तो वो डिपेंडेंसी आपके एड कैंपेन के दौरान ही आपको पता चलेगा। मोस्टली हाँ। यूट्यूब के लिए अगर हम देखें तो उसमें VCPM ही चलता है ज्यादा। हाँ, आप कर सकते, देखिए कभी कभार होता है कि यूट्यूब के दौरान लोग लीड्स भी करते हैं, उन लोग जी अपने जी। लीड्स फॉर्म को भी, तो उस टाइम पे आप कन्वर्जन लो। अगर आपको ऐसे इंप्रेशन चाहिए कि जस्ट आपको अवेयर करना कि भाई ये बिजनेस है, मतलब नहीं होता कि लोगों को जस्ट रीटारगेट करना है एंड उन लोग की नजर से वो बिजनेस हटना नहीं चाहिए आपका, व्हेन यू आर ऑन ग्रोइंग स्टेज, तो उस टाइम पे आप इंप्रेशन ले सकते हो। ओके। हाँ, सो अभी हम लोग कर रहे हैं सर्च नेटवर्क ऐड, ठीक है। और सर्च, एक चीज और, सर्च नेटवर्क ऐड की दो डिपेंडेंसी रहती है, ठीक है। सर्च नेटवर्क ऐड की देयर आर टू टाइप ऑफ डिपेंडेंसी ऑन द सर्च नेटवर्क ऐड, दैट इज कीवर्ड एंड ऐड फॉर्मेट। आपका जो भी सर्च नेटवर्क आप ऐड रन कर रहे हो, जो अभी हम लोग कंबाइनिंग कर रहे हैं यहाँ पे सर्च नेटवर्क पे, तो सिर्फ वो दो पे डिपेंड करता है, दैट इज योर कीवर्ड। जितना अट्रैक्टिव कीवर्ड और जितना अच्छा आप कीवर्ड यूज करोगे, उतना प्रॉफिटेबल आपको क्या मिलेगा, इनसाइट्स मिलेगा। एंड सेकंड इज योर एड फॉर्मेट। एड फॉर्मेट मींस कि जो आपके विजिटर्स को गूगल पे जो एड दिखाई देगा, दैट शुड बी अट्रैक्टिव और अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अट्रैक्टिव से ज्यादा अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए कि भाई मतलब समझ में आ रहा है कि सामने वाला क्यों आपके में इन्वेस्ट करे, क्यों आपके बिजनेस की तरफ अपना इंटरेस्ट शो करे, इन शॉर्ट। तो अभी हम लोग बिडिंग ले रहे हैं सर्च इंजन मार्केटिंग ऐड की, दैट इज मैक्सिमम क्लिक्स की, ठीक है। बिडिंग हम लोगों ने यहाँ पे प्रीवियसली कितनी सेट की थी, 15 रुपीज की। अंडर 15 और 15 पे ही हमारी बिडिंग क्या होनी चाहिए, डिडक्ट होनी चाहिए, दैट इज कॉस्ट पर क्लिक और पे पर क्लिक, बोथ आर सेम। नेक्स्ट इज सॉरी, हाँ, नेक्स्ट इज आपका कस्टमर एक्विजिशन, जो कि हमारे यहाँ नहीं है। कस्टमर एक्विजिशन इन शॉर्ट कि इफ यू हैव अ न्यू कस्टमर्स और यू हैव अ लिस्ट और कुछ बिडिंग स्ट्रैटेजीज हैं तो आप करो, अदरवाइज कस्टमर एक्विजिशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। जितना सिंपल आपका सर्च एड क्रिएट करोगे, दैट विल बी प्रॉफिटेबल फॉर यू, कि आपको उतना ही अच्छा इंसाइट्स भी मिलेगा। तो यहाँ पे इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये हम आपको कॉमन बेसिस पे बता रहे हैं। कॉमन इन सेंस की अगर आप इधर सर्विस के लिए कर रहे हो, प्रोडक्ट के लिए कर रहे हो, इधर प्रमोशंस के लिए कर रहे हो, हम एक कॉमन बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से सर्च एड बता रहे हैं। हम सिर्फ इसलिए नहीं बता रहे कि यहाँ पे आप सैंपल में ही आप यूज नहीं करोगे। अगर आप किसी फर्म के लिए भी काम करते हो तो उस सिनेरियो में भी इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज ऑलवेज आपको न्यू कस्टमर्स ही मिलेंगे, ठीक है। जब भी आप कोई कैंपेन रन करोगे ना, और XYZ आप किसी पे भी कैंपेन रन करोगे, आउट ऑफ 10 आपको 4 कस्टमर्स तो न्यू उसमें मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है अपने को। नेक्स्ट इज आपका आ जाता है इसको, हाँ, नेक्स्ट आपका आता है सर्च एंड डिस्प्ले एड। अब यहाँ पे ऑप्शन था, अगर किसी को मतलब याद है या फिर इफ यू हैव इन योर माइंड कि सर्च एंड डिस्प्ले क्यों यहाँ पे हम लोगों ने डिसेबल किया है या फिर सेलेक्ट नहीं किया है, उसका रीजन क्या है, अगर किसी को याद है तो। नहीं है तो हम स्टिल आपको रिवाइज कराएंगे। हाँ, कैन आई प्लीज प्लीज। क्योंकि सर्च नेटवर्क जो है
उनके जो पार्टनर जो एग्जैक्टली क्या कहूंगा मैं प्लेटफॉर्म्स उसको, हैं जैसे कि हाँ जी प्लेटफॉर्म्स हैं, जी, वहां पे अगर हमारा ऐड रन होता है तो रेलेवेंसी नहीं होगी हमारे ऐड की वहां पे, तो एग्जैक्टली हमारा जो बजट होगा वो यूजलेस, मतलब वहां पे ज्यादा स्पेंड हो जाएगा और हमको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने ऐड करेक्ट से, करेक्ट राइट। बिल्कुल डिस्प्ले करेक्ट। एड, एज फार एज डिस्प्ले एड इज कंसर्न, सो ये सर्च एड है, और डिस्प्ले एड पे जाने का कोई मतलब होता नहीं है वहां पे वैसे भी, तो एग्जैक्ट दैट्स सी, व्हाई वी ऑलवेज बिल्कुल। अनचेक इट। आपका गुड नेम प्लीज? विनय प्रभाकर। अभिनव। विनय विनय अभिनय, ओ आई एम रियली सॉरी, अभिनय बिल्कुल नो, करेक्ट बोला। इट्स विनय, VINAY, विनय। विनय, विनय, आई एम रियली या सॉरी अगेन। नो 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 विनय नॉट एट ऑल। एकदम करेक्ट या आपने बोला। सो सी उनका बिल्कुल जो आंसर उन्होंने दिया एक्यूरेट दिया है। सर्च एंड डिस्प्ले एड हम लोग ने इसलिए डिसेबल किया बिकॉज वी डोंट वांट टू शो आवर एड ऑन देयर पर्टिकुलर पार्टनर प्लेटफॉर्म। For example, search network partner platform is your Google Map and your Google search engine result page. Display network platform is YouTube, Gmail, as well as a third party website, which is your blogging website where daily updates you will get, like for example Times of India or Bharat or Bhaskar type of newspapers or news websites are. So if you are dedicatedly creating a search network ad, don't use or select these type of partner platforms, as Vinay said कि आपका जो मनी है वो वेस्ट होगा और एक्सेसिव वेस्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव अ बजट, पर डे बजट इज योर 1000 रुपीज, लेट कंसिडर, ठीक है 1000 रुपीज। सो अगर आप पार्टनर प्लेटफॉर्म से दिखा रहे हो तो ऑब्वियसली आपकी जो एड है वो और जगह पे भी कास्ट हो रही है, और जगह पे भी वो क्या हो रही है, पुट हो रही है, शो कर रहा है गूगल। तो 1000 रुपीज इट्स अ लेस अमाउंट, आपका मोर देन 1000 वहां पे क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप डेडिकेटली इफ यू आर रनिंग अ सर्च नेटवर्क एड, नेवर सेलेक्ट ऑन दीज टू थिंग्स। हाँ, अगर आपको किसी ने बोला इन कंपनी, अगर आपसे किसी कोई बोलता है, आपका मैनेजर या सीनियर या क्लाइंट आपको बोलता है कि नहीं मुझे बजट का कोई इशू नहीं है, show your ad on partner platforms, either it's display or search network, whatever it is, आप क्लिक कर दो। तो सिंपली आपको इस पे क्या कर देना होता है, चेक कर देना होता है। तो इससे क्या हो जाता है, गूगल को एक अथॉरिटी मिल जाती है कि आपका जो एड है सिर्फ डेडिकेटली आपके सर्च नेटवर्क सॉरी सर्च इंजन पे ही नहीं, साथ ही साथ वो आपके गूगल मैप पे हो गया, नॉट गूगल एप्लीकेशन, जो गूगल मैप आपके लोकल एसईओ में होते हैं वहां पर हो गया, जीमेल पे हो गया, एंड फर्दर जहां जहां पे भी यूट्यूब पे हो गया, एंड थर्ड पार्टी ब्लॉगिंग गूगल एडसेंस अप्रूव्ड वेबसाइट पे हो गया। सो ये जब आपको मिले अथॉरिटी तभी आप इसको सेलेक्ट करो। इधर अगर सिर्फ आपको कोई सर्च नेटवर्क बोलता है तो कभी भी इसको आपको सेलेक्ट नहीं करना है। हाँ, आपको कमांड मिले कि यू हैव टू शो योर एड ऑन द पार्टनर प्लेटफॉर्म्स, देन सेलेक्ट, उसमें भी पूछो ऑन विच पार्टनर प्लेटफॉर्म। थर्ड अगर बोलता है थर्ड पार्टी, देन सेलेक्ट डिस्प्ले। इफ कोई बोलता है कि नहीं लोकल एसईओ एंड सर्च नेटवर्क सर्च इंजन, देन यू सर्च नेटवर्क। कोई बोलता है यूट्यूब, देन सेलेक्ट डिस्प्ले। तो इसलिए यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिया गया है, बट डेडिकेटली वी आर ओनली क्रिएटिंग अ सर्च नेटवर्क एड, तो हम लोग यहाँ पे इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। चलिए अब बात आती है अपनी नेक्स्ट होके द लोकेशन। अब लोकेशन में डिपेंडेंसी रखती है कि व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस, मतलब आप वर्क कर रहे हो या किस तरह के फॉर्म के लिए आप वर्क कर रहे हो, फॉर व्हाट टाइप ऑफ फॉर्म यू आर वर्किंग फॉर। सो ऑल कंट्री एंड टेरिटरीज, तो आप इस पे सेलेक्ट करो ओनली फॉर इंडिया, ओनली फॉर इंडिया, देन सेलेक्ट दिस। एंड अगर आपको कोई पर्टिकुलर लोकेशन के लिए, फॉर एग्जाम्पल आई सेलेक्टेड पुणे, कि पुणे के ऑडियंस को हमारी क्या होनी चाहिए, एड दिखनी चाहिए, एंड देयर पिन कोड एज वेल, ठीक है, पिन कोड एज वेल मतलब पर्टिकुलर इस पिन कोड के ही ऑडियंस को हमारी एड दिखनी चाहिए। तो हमारी एड का जो गूगल क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ यही लोकेशंस पे क्या करेगा, हमारी ऑडियंस को टारगेट करेगा। और अगर कुछ आपका ऐसा है कि नहीं मेरी ऑडियंस मुंबई वाली ऑडियंस को मुझे मार्केट में नहीं लेकर आना है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, एक्सक्लूड कर सकते हो। तो मुंबई में गूगल आपकी एड को प्रेफरेंस नहीं देगा। क्लियर है आपका ये चीज? अब देखिए, जी अब एक ऑप्शन यहाँ पे ये भी आता है कि अगर हम लोग इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें और यहाँ पे जाते हैं, सी आपको टू टाइप ऑफ ऑप्शंस यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। फर्स्ट इज प्रेजेंस और इंटरेस्ट, और सेकंड इज प्रेजेंस। दोनों में डिफरेंस है।
ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है उसके बारे में बात करते हैं। प्रेजेंस एंड इंटरेस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल इस पॉइंट की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने एक्सक्लूड किसको किया है, कौन सी सिटी को एक्सक्लूड किया है, मुंबई को, कि मुंबई में डेडिकेटली आर एड हैज नॉट बीन शोन इन दी मुंबई, ठीक है। बट समहाउ एक चीज ये भी तो हो सकता है कि आप, फॉर एग्जाम्पल आप मुंबई से नहीं हो, आप लेट कंसिडर आप पुणे से हो, बट यू लिव इन मुंबई फॉर फ्यू इयर्स और समथिंग, किसी की भी रीजन XYZ, कैसे भी आप मुंबई में हो, ठीक है। बट अगर आपको स्टू इंटर्न को सर्च करना है, स्टू इंटर्न को फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज वी आर मेकिंग एन एड कैंपेन फॉर स्टू इंटर्न के लिए, तो आपको एड नहीं दिख रहा, ठीक है। मुंबई में क्या हुआ है, रिस्ट्रिक्ट हुआ है कि गूगल मुंबई के लोगों को एड नहीं दिखाएगा, ठीक है। बट अगर आपका इंटरेस्ट है स्टू इंटर्न में, एंड अगर आपको किसी से पता चला है फ्रॉम थर्ड पर्सन, और समहाउ कहीं से भी आपको स्टू इंटर्न के पता चला है, तो क्या गूगल पे भी स्टू इंटर्न नहीं दिखाई देगा? गूगल पे तो, अगर आप मानिए हम लोग अभी मुंबई में हैं, ठीक है, और ये एड रन हो रही है, मुंबई वालों को ये एड शो ही नहीं करना, हम लोग को डेडिकेटली एड नहीं दिखाई देगा। बट अगर कोई स्टू इंटर्न इस तरह से काइंड ऑफ अगर सर्च करेगा मुंबई से, तो उस पर्सन को ये एड दिखाई देगी, ठीक है। तो इसके जो ऑप्शंस यहाँ पे आ रहे हैं, प्रेजेंस एंड इंटरेस्ट, मतलब कि रेगुलर बेसिस पे आप उस पर्टिकुलर पुणे एंड इस लोकेशन पे आप नहीं हो, आपकी प्रेजेंस जो है, आपकी जो प्रेजेंस है भले ही इस लोकेशन पे नहीं है, बट आप उस कंपनी को तो सर्च आउट कर सकते हो ना। तो प्रेजेंस एंड इंटरेस्ट मतलब ये होता है। एंड प्रेजेंस पे अगर आप सिर्फ क्लिक लगा देते हो, प्रेजेंस पे अगर आप क्लिक लगा देते हो, तो प्रेजेंस मतलब ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ जो पुणे में ही है उन्हीं को हमारी एड शो होनी चाहिए। मतलब अगर पुणे का पर्सन अगर वो बाहर भी रह रहा हो, मुंबई में, बैंगलोर में, और कहीं XYZ कहीं पे रह रहा हो, उसकी प्रेजेंस अगर पुणे में नहीं है, तब तक उसकी एड शो नहीं होगी। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको बोलता है। पहला कि आपकी प्रेजेंस मांगती है टारगेट लोकेशन पे, अभी हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं कि आपका जो प्रेजेंस होना चाहिए पर्टिकुलर टारगेट लोकेशन पे होना चाहिए, देन यू कैन शो द एड। और अगर आप एक्सक्लूडेड हो और अगर आप प्रेजेंस और इंटरेस्ट पे शो लगाते हो, तो इन केस आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी हो, मतलब ऑल ओवर इंडिया मतलब मुंबई में, पुणे में और इस जगह में से, यहाँ इन तीनों में से आप कहीं पे भी हो, और अगर आप स्टू इंटर्न को सर्च करते हो तो भी हमारा एड नहीं दिखेगा, बट वेबसाइट हमारी ओपन होगी। तो यहाँ पे हमेशा आपको रिकमेंड करना होता है इस वाले पॉइंट पे। सॉरी एक सेकेंड, कर्सर कहाँ गया। अगर आपको बजट का इशू है तो हमेशा इस वाले पे आपको क्लिक करना है, ना कि रिकमेंडेड वाले पे, प्रेजेंस पे। बिकॉज मुझे सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटली पुणे एंड पर्टिकुलर दिस पिन कोड के लिए ही हम लोग को एड रन करना है, तो उनकी प्रेजेंस सिर्फ इस यहीं पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो मुंबई से हमारी एड देख ले, औरंगाबाद से देख ले, या नासिक से देख ले, नहीं, नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से क्या होता है, अगर आप इंटरेस्ट, प्रेजेंस और इंटरेस्ट पे क्लिक लगाते हो, तो आपकी प्रेजेंस भले ही ना हो, लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट है उस पर्टिकुलर लोकेशन पे, पुणे वाले पे, तो आपकी एड गूगल शो करेगा। लेकिन अगर आप डेडिकेटली प्रेजेंस पे लगाओगे, तो आपकी उस टारगेट लोकेशन पे आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए। प्रेजेंस मतलब आप वहां पे होने चाहिए। जैसे अभी हम पुणे में हैं, तो पुणे में मेरी एड वो दिखाई देगी, लेकिन इन समहाउ अगर इस ऑप्शन को हम सेलेक्ट करके कहीं और बैठे होंगे तो मेरी एड नहीं दिखाई देगी उस सिनेरियो में। तो हमेशा आपको सेलेक्ट, हमेशा नहीं बट हाँ, रिगार्डिंग उस पे प्रेजेंस पे, अगर कम बजट है तो प्रेजेंस पे रखिए, अगर बजट पे कोई इशू नहीं है, प्रेजेंस और इंटरेस्ट पे आप रखो उस चीज को। लैंग्वेजेस, आप चाहो तो ऑल लैंग्वेजेस कर सकते हो। ऑल लैंग्वेजेस बिकॉज गूगल को आप अपने अपने मल्टीपल रिस्पेक्टिव लैंग्वेजेस में यू कैन यूज गूगल। इधर आपको इंग्लिश रखना है, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, XYZ जो भी आपके लैंग्वेजेस होते हैं आप उसमें यूज कर सकते हो, तो इसलिए ऑल लैंग्वेजेस। दैट इज ऑडियंस सेगमेंट। ऑडियंस सेगमेंट में आप यहाँ पे रिफाइन करते हो अपने ऑडियंस को कि कौन सी ऑडियंस पे हमारी एड क्या होनी चाहिए, शो होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियसली यहाँ पे सेलेक्ट किया था डिटेल टारगेटिंग में, सी कि कॉलेज स्टूडेंट्स को होनी चाहिए, डिग्रीज को, बैचलर्स को, हाई स्कूल ग्रेजुएट्स को, तो इन सबको हमारी एड्स क्या होनी चाहिए, काइंड ऑफ शो होनी चाहिए। मतलब ये एक, चाहे दो ऑप्शंस आते हैं, आप चाहो तो इसको नहीं भी सेलेक्ट कर सकते हो, बिकॉज सर्च नेटवर्क एड में ऑडियंस टारगेटिंग इतना मैटर नहीं करता, बिकॉज अगर आप लोकेशन को टारगेट कर दिए हो और कीवर्ड्स को अट्रैक्टिव यूज कर दिए हो, तो ऑडियंस इतना मैटर नहीं करता। बट हाँ, इफ यू वांट टू रिफाइन कि नहीं बजट का थोड़ा इशू चल रहा है, सी
गूगल में बजट बहुत इंपॉर्टेंट है, गूगल में बहुत बजट इंपॉर्टेंट है। क्यों? उसका भी एक रीजन है। गूगल इज वेरी एक्सपेंसिव प्लेटफॉर्म, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। इन सम सिनेरियोज ऐसा होता है कि आपको एक सर्टेन डेटा आपको नहीं मिलता है, बट स्टिल आपके जो पैसे होते हैं ना वो बहुत ज्यादा यूज हो जाते हैं। तो जितना वाइजली और जितना आप थोड़ा सा आप बोल सकते हो ना अपने आप को बाइंड करके चीजों को अगर चलो गूगल पे, तो वो ज्यादा आपके लिए इफेक्टिव रहेगा। बिकॉज गूगल अगर इन सिंपल लैंग्वेज बात करें, गूगल इज फर्स्ट ऑफ गूगल इज एक्सपेंसिव, सेकंड इज गूगल डिपेंड्स ऑन द कीवर्ड, एंड थर्ड इज if someone finds your campaign aggressively like impressions multiple times one person see and doing clicks and you didn't get any kind of results over that, so उस सिनेरियो में क्या हो जाता है ना कि आपके पैसे जो होते हैं मतलब हाईली अमाउंट में निकलना स्टार्ट हो जाते हैं एंड यू कांट कंट्रोल दैट। तो इसलिए सर्च नेटवर्क एड पे इसीलिए बोला जाता है कि यू हैव टू चूज, मींस अगर आपका बजट है तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंगली ही क्या करो, यू टारगेट योर फर्दर थिंग्स, फॉर एग्जांपल योर कस्टमर्स मींस योर ऑडियंस, जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे टाइप किया ना ऑडियंस सेगमेंट्स, दिस इज योर ऑडियंस सेगमेंट। तो ऑडियंस एज वेल एज योर लोकेशन और आपका बिडिंग, बिकॉज बिडिंग अगर आप गूगल पे छोड़ दिए, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे अगर आपने नोटिस किया होगा बिडिंग पे कि अगर इफ यू लीव द बिडिंग ऑन गूगल, कि अगर आपने यहाँ पे कोई बिडिंग सर्च नहीं पुट नहीं किया, तो in that scenario out of let's consider your budget is 2000 rupees, or in that scenario maybe for one click Google will deduct 50 rupees, for 21 click Google will deduct 20 rupees। इस तरह से क्या करेगा गूगल आपके अमाउंट को खत्म कर देगा। तो बिडिंग इंपॉर्टेंट है। तो आप मेरा 15 है, आप 10 भी पुट कर सकते हो, बट 10 से कम मत करना, वो कीवर्ड्स ऑटोमेटिकली ही अपने आप कम कर देगा, बिकॉज गूगल भी इतना वो नहीं आपको चीजें प्रोवाइड करेगा। कस्टमर एक्विजिशन, कैंपेन सेटिंग्स। हेलो मैम। हाँ बोलिए। ऑडियंस मैम दोबारा रिपीट कर सकती हो आपने क्या जो बताया था बिडिंग के बारे में? बता, बिडिंग क्या होती है? सिंपली बिडिंग अगर आप पुट नहीं करो, जैसे हमने बिडिंग कितनी पुट की थी 15 रुपीज, ठीक है, अगर आप बिडिंग पुट नहीं करते हो ना तो गूगल क्या करेगा ना, कॉस्ट पर क्लिक पे मे बी वो 50 रुपीज भी डिडक्ट कर लेगा, 20 रुपीज भी डिडक्ट कर लेगा, वो अपने मन मर्जी से कर लेगा। बिडिंग मतलब हमने हाँ बोलिए। मतलब हमने मैक्सिमम 15 जो भी मतलब हमने रेट 15 एडजस्ट करना है। 20 ये आप पे एडजस्टमेंट है कि आपको कितना ओके बिडिंग ओके रखना ओके, है, वो आप पे डिपेंड मतलब है। इससे मेरा ज्यादा था ना कि जाए। हाँ इससे ज्यादा भी जा सकते, तो मैंने 15 इसलिए पुट किया है कि मुझे ओके सम ऑफ ओके 15 ओके के अंडर में सीपीसी लेकर आना है, बिकॉज कॉस्ट पर ओके क्लिक इज टू एक्सपेंसिव। तो इस वजह से हो क्या जाता है कि अगर कोई गलती से भी क्लिक कर दिया तो पैसे तो तब भी डिडक्ट होने हैं ना गूगल से, तो मतलब अपने अकाउंट में से। तो इसलिए हम लोग को बिडिंग वहां पे एडजस्ट कर देने देती है कि अगर आप 20 फॉर एग्जाम्पल आपने 20 रुपीज डाल दिया, तो 20 के ही अंडर में बिडिंग होनी चाहिए, 20 के ऊपर एक्सीड नहीं करनी चाहिए, तो वो उसके लिए है। तो बिडिंग डालना जरूरी है, गूगल पे बिडिंग मत छोड़िएगा कभी भी, और ये कोई मैंडेटरी ओके नहीं है ऑडियंस मैम। सेगमेंट। हाँ बोलिए। सेकंड सेकंड थिंग, मतलब जब मान लो हम कोई यूजर जो भी आया है गूगल पे, हम्म उसने क्लिक कर दिया, क्लिक करने हम्म के बाद हमारे पास जो भी लीड आई वो लीड ऑप्टिमाइजेशन हुई या मतलब जो भी लीड एक्यूरेट हो गई है, तब पैसे कटने चाहिए? तो ऐसे मतलब क्लिक क्लिक के बाद ही पैसे कट जाएंगे? क्लिक कर दिया गलती से भी ना, पैसे डिडक्ट। ओके, मतलब लीड आए ना आए कोई वो नहीं? आए चाहे ना आए, गूगल को उससे मतलब ही नहीं है। बस सीपीसी मीन्स यही होता है कि ओके क्लिक एंड डिडक्ट, आप क्लिक करके बैक भी हो जाओगे ना डिडक्ट, तो इसलिए थोड़ा सा इसको बाइंड करके चलना पड़ता है। सी यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्वेशन एंड टारगेटिंग, बट इतना ओके, हम लोग का इंपॉर्टेंट नहीं है उस चीज मतलब के ऐसे कोई लिए। ऐड नहीं पे आए और जो भी हम चाहते थे, जो भी गोल सेट किया। ओके क्या क्या ओके, आपने क्या बोला? मतलब ऐसा कोई फंक्शन ही है जैसे कि हमने कोई गोल सेट कर दिया कि तभी हमारे पैसे कटें जब हमारा नहीं हमारा फॉर्म फिल नहीं हो या कुछ ऐसा? ओके ओके मैम, इसलिए ठीक है। सर्च इंजन मार्केटिंग को कभी कभार हम लोग ये भी बोलते हैं सीपीसी एंड पीपीसी स्पेशलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। कभी कभार अगर आप लोग जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए भी कभी भी आप लोग देखोगे लिंक्डइन पे, तो समवेयर इट इज आल्सो रिटन एज द पीपीसी स्पेशलिस्ट, इट मींस कि आपको सर्च इंजन मार्केटिंग स्पेशलिस्ट की ही रिक्वायरमेंट है। तो उसको आप पीपीसी स्पेशलिस्ट भी बोल सकते हो, सर्च एसईएम स्पेशलिस्ट भी बोल सकते हो।
तो ये सेम ही होता है। तो वो आपके हर एक छोटे से बाय मिस्टेक इफ यू क्लिक वन टाइम, मतलब बाय मिस्टेकन, तो वो डिडक्ट हो ही जाएगा, इधर आपका लीड बने चाहे ना बने। सो अब हम लोग यहाँ पे करते ब्रॉड मैच। एक डाउट है, हाँ बोलिए। अगर हमारे कोई भी कॉम्पिटिटर है, उन्होंने हाँ। बार बार हमारे लिंक पे क्लिक किया, तो भी वो बार बार हमेशा पैसे कट हो जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, एक चीज और होती है, ये चीज आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। लेट कंसिडर, वैसे कॉम्पिटिटर हम लोग को ऐसे सर्च नहीं करेगा, बट हाँ एक तरीके से विजिटर्स का मान लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक एड रन किया, ठीक है, और मुझे वो एड 5 टाइम शो हुई, ठीक है, लेट कंसिडर 5 टाइम शो हुई। गूगल का भी एक जैसे सर्टेन क्राइटेरिया होता है कि इतने के बाद इस पर्टिकुलर पर्सन को एड नहीं दिखानी चाहिए, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन। सो हाँ, यहाँ पे हम लोग आते हैं कि एड कट होने का, कि गूगल ये भी ऑब्जर्व करता है कि मानिए हम आप एड पे गए, मुझे एक कीवर्ड पे 2 बार आपकी एड दिखाई दी। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक पर्टिकुलर कीवर्ड पे 2 बार आपकी एड दिखाई दी, मैंने क्लिक किया और हम रिवर्ट बैक हो गए, देन क्लिक किया फिर रिवर्ट बैक हो गए, तो थर्ड टाइम पे ना मुझे कीवर्ड पे वो पर्टिकुलर जो एड है ना शो होना गूगल बंद करा देगा। तो वो ये करेगा आपके संग। ओके। तो वो गूगल क्या करेगा कि भाई ये पर्सन को एड तो शो हो रही है बट इसका कुछ मतलब बोल सकते हो आप प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। तो समहाउ आफ्टर सर्टेन टाइम, मतलब सर्टेन टाइम कि आफ्टर 3 और 4 टाइम्स के बाद वो आपको उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे, जैसे आप लोग ने अगर मास्टर क्लास में देखा होगा, मुझे बहुत सारे कीवर्ड्स पे ऐड दिखना बंद हो गए थे, दैट्स किसी ने सजेशन किया कि इनकॉग्निटो पे स्विच करो। तो इस वजह से, क्योंकि हिस्ट्री आपकी भी सेव होती है, ठीक है, गूगल के एल्गोरिथम्स भी वर्क करते हैं, इन दैट सिनेरियो में ये प्रॉब्लम पे क्या होता है कि गूगल आपको उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे ऐड दिखाना कुछ टाइम पीरियड के लिए बंद कर देता है। फॉर एग्जांपल 3 डेज के लिए, 2 डेज के लिए, इस सर्टेन टाइम पीरियड के लिए बंद कर देगा ऐड दिखाना। ओके, तो फिर वो गूगल ऑटोमेटिकली करता है, हम जब न्यू कैंपेन्स लॉन्च करते हैं तब हमें कुछ नहीं करना है? नहीं, आपको कुछ नहीं करना, आपने पैसे लगाए, कीवर्ड बता दिए गूगल को कि इस कीवर्ड पे मेरी ऐड दिखनी चाहिए, गूगल पे आपने लॉन्च कर दिया, अब जो भी काम होगा वो आपका गूगल करेगा। ओके, ठीक आपका है। काम खत्म हो चुका है। ओके। इसलिए हम लोग ऑप्शन में ना ऐड रोटेशन में ऑप्टिमाइजेशन को सेलेक्ट करते हैं। ये यहाँ पे मिल जाएगा आपको, ऐड रोटेशन ऑप्टिमाइजेशन। सी यहाँ से आपसे पूछता है कि आपको ऑप्टिमाइज कराना है अपना ऐड या डू नॉट ऑप्टिमाइज। डू नॉट करा दोगे तो गूगल आपके ऐड को ऑप्टिमाइज करेगा ही नहीं, जिससे कि आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। और जैसे आपने कहा कीवर्ड्स पे ऐड दिखाई देंगी, मल्टीपल टाइम्स पर्सन विल कम एंड क्लिक ऑन दैट योर पर्टिकुलर ऐड, और आपका वो क्या होगा, बिडिंग डिडक्ट होगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ऑप्टिमाइज कराते हैं, जिससे गूगल कुछ चीजों में तो अपने को हेल्प दे। तो इसलिए ऑप्टिमाइजेशन सबसे बेस्ट होता है। देन आपका यहाँ पे आ जाता है इस जगह पे स्टार्ट एंड एंड डेट, कब आपको स्टार्ट करना है कब एंड करना है। शेड्यूल आ जाता है व्हेन यू वांट टू शो योर एड इधर मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और ऑल डेज। डिपेंडेंसी कि आपके ऊपर रहती है कि आपका बजट कितना है, तो उसके अकॉर्डिंगली भी आप अपने एड को क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो। दिस इज एड शेड्यूल इज द बेस्टेस्ट वे टू मींस कंट्रोल योर बजट। एड शेड्यूल सबसे बेस्टेस्ट वे होता है टू कंट्रोल योर बजट, बिकॉज आप ऑल डे कर दोगे तो सोचो कि आप कंगाल हो गए एक तरीके से, मतलब आपके पास कुछ पैसा नहीं बचेगा उस तरह से। दैट्स व्हाई आप इसको अगर फॉर एग्जांपल इफ वंस अ वीक कर सकते हो, या वीक्स में आप 2 और 3 टाइम्स अपनी एड को ऑल्टरनेटिवली दिखा सकते हो, तो उसमें आपके बजट भी थोड़े कंट्रोल में रहते हैं और आपको प्रॉफिटेबल चीजें भी मिलती हैं, रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कैंपेन यूआरएल। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, बट अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं। आपके कैंपेन यूआरएल एंड ब्रांड इंक्लूजन के सिंपली हम आपको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। मुझे आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही है। किसी को भी नहीं आ रही क्या तब से? नहीं मैम, आ रही है। नहीं आ रही है। मैम योर वॉइस इज मुझे ओके। बिल्कुल नहीं आ रही कोई है, बात बिल्कुल नहीं, नहीं आ आपको रही है। कहाँ से समझ में नहीं आया या रिपीट करना है, हम रिपीट करें वापस से? अभी आ रही है क्या आपको? अगर आप अपने सिस्टम से कनेक्टेड हैं तो सिस्टम का वॉल्यूम इंक्रीज करें, या हेलो फिर अपने फोन से हेलो, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज क्लियर है? यस सर, यस सर। हेलो। ओके, सो जिन्हें भी ऑडियो का प्रॉब्लम है ना, अपने सिस्टम के वॉल्यूम को इंक्रीज करें आप। एवरीथिंग इज फाइन फ्रॉम द जूम प्लेटफॉर्म। मैम प्लीज कंटिन्यू।
सो इन शॉर्ट मीन्स हम लोग इसके बिहाफ में भी हम लोग इसके बारे में जानेंगे, बट स्टिल यहाँ पे हम आपको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे देते हैं कि कैंपेन यूआरएल ऑप्शन हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करते. वी विल नॉट सेलेक्ट कैंपेन यूआरएल ऑप्शन हियर बिकॉज वी गूगल ad give you a remarketing and conversion code behalf of this, because ये भी आपका हेल्प करता है फॉर द ट्रैकिंग प्रोस्पेक्टिव, बट ज्यादा बेनिफिशियल जो रहता है दैट इज योर रीमार्केटिंग एंड कन्वर्जन कोड. बट हाँ, आफ्टर ऑल द एड कैंपेन्स जैसे डिस्प्ले एंड यूट्यूब कैंपेन्स के बाद वी विल आई लेट यू नो कि कहाँ से हम लोग रीमार्केटिंग एंड कन्वर्जन कोड पा सकते हैं. बट हाँ, यहाँ पे जब भी आप कैंपेन सेलेक्ट करते हो तो इसकी कोई मींस आपको ऑप्शन नहीं सेलेक्ट करना है, और सर्च नेटवर्क में तो बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज उसका भी एक रीजन है कि जितना हेल्पफुल रीमार्केटिंग कोड, जितना हेल्प आपको आपकी वेबसाइट को ग्रो करने के लिए कर सकता है, उतना आपको कैंपेन यूआरएल ऑप्शन नहीं कर सकता है. तो इसका कोई भी यूज नहीं है यहाँ पे. अगर हम लोग यहाँ पे भी जाएं, अगर एक सेकेंड, यहाँ से एक और ऑप्शन था अपने पास, ब्रांड इंक्लूजन. सी, ब्रांड इंक्लूजन मीन इन शॉर्ट हो क्या जाता है कि सिंपलेस्ट वे में अगर हम लोग ब्रांड इंक्लूजन की अगर बात करें, जैसे कि चलिए, जैसे कि अगर एग्जांपल लेते हैं हम लोग ब्रांड इंक्लूजन का, कि फॉर एग्जांपल आपका कोई जैसे यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट इन द सेंस की कोई आप पर्टिकुलरली विमेंस के लिए या मेंस शूज के लिए आप क्या करते हो, प्रोडक्ट को करते हो. तो देयर आर सम कीवर्ड्स कि आप अगर जैसे सर्च करते हो ना गूगल पे कि बेस्ट स्नीकर्स फॉर मेन, तो कितने ज्यादा कॉम्पिटिशंस आ जाते हैं. तो दैट इज योर ब्रांड एक्सक्लूजन. वहां पे आपको डिफरेंट ब्रांड्स मिल जाते हैं. तो इन उस कीवर्ड्स पे आपको अपनी, जैसे कि नेगेटिव कीवर्ड, इन शॉर्ट हम लोग नेगेटिव कीवर्ड की बात कर लेते हैं कि ब्रांड एक्सक्लूजन आपका ऐसे वर्क करता है कि उन कीवर्ड्स पे अपनी को ऐड दिखाना नहीं है जहाँ पे कंपटीशन अपना ज्यादा हो, बिकॉज कंपटीशन में क्या होता है कि कंपैरिजन ज्यादा बैठ जाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पे जाएं इस जगह पे और यहाँ सर्च करें बेस्ट स्नीकर्स फॉर मेन, मैं ऐड ही देखता, मुझे अपना हिस्ट्री डिलीट करना पड़ेगा पूरा. एनीवेज, यहाँ पे आपको इमेजेस दिखती हैं, अगर आप लोग ने फोकस किया होगा यहाँ पे आपको ऐसे इमेजेस दिखती हैं ब्रांड्स की, ऐसे लाइन से आपको इमेजेस दिखती हैं. तो उसमें आपको डिफरेंट वेबसाइट्स की भी इमेजेस दिखती है, लाइक Amazon और अलीबाबा और अजियो. शॉपिंग ऐड का हाँ ना? एग्जैक्टली, शॉपिंग एड काइंड ऑफ. तो उस सिनेरियो में क्या हो जाता है कि एक कंपटीशन बढ़ जाता है पर्टिकुलर कीवर्ड से. जैसे कि अगर आप सर्च करते हो तो ब्रांड इंक्लूजन मतलब क्या हो जाता है कि आप किसी कीवर्ड्स पे आपके कॉम्पिटिटर आपको मिल जाते हैं. तो ये मोस्टली प्रोडक्ट एंड काइंड ऑफ सर्विस के लिए होता है, बट इतना इंपॉर्टेंट सर्च के लिए नहीं होता. सर्च अपना सिंपली आप रन करो, प्रॉफिटेबल है उस तरीके से. तो इसलिए कैंपेन यूआरएल ऑप्शन और ब्रांड इंक्लूजन जो होता है ज्यादातर कैंपेन्स में, मतलब इधर वो डिस्प्ले हो, यूट्यूब हो या सर्च नेटवर्क ऐड हो, हम लोग मतलब यूज नहीं करते हैं इसको. ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, हम लोग का नेक्स्ट आता है, यहाँ पे हम लोग को वेबसाइट यूआरएल डालनी पड़ेगी. एक सेकेंड, फाइनल यूआरएल आपका स्टू इंटर्न कंट्रोल सी, क्योंकि हम लोग को कीवर्ड्स चाहिए ना, दैट्स वाई यहाँ पे पुट करना जरूरी है. ठीक है, अभी हम लोग इसको, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, आप चाहो तो जनरेट भी कर सकते हो, बट जनरेट से प्रॉफिट मिलेगा, आपको आइडिया मिलेगा व्हाट काइंड ऑफ कीवर्ड यू कैन यूज फॉर योर पर्टिकुलर कैंपेन. तो हम लोग जनरेट पे क्लिक करेंगे, और अगर आपके पास आइडिया है, इफ यू हैव एन आइडिया कि मुझे पता है कि मुझे कौन से कीवर्ड यूज करने हैं और मैं डेफिनेटली इस पे डैम श्योर हूँ कि मेरे को ये प्रॉफिट देगा, एट दैट सिनेरियो स्किप कर दो, इधर आप जनरेट कर दो. तो हम लोग अभी जनरेट करते हैं, स्क्रॉल डाउन. सी, ये पर्टिकुलर कीवर्ड्स हम लोगों को यहाँ पे मिल गए हैं जनरेट करने पे, लोड जब हुआ तो जनरेट करने पे. अब एक और चीज है इसमें, अगर आप फोकस करोगे यहाँ पे तो
एक, हाँ, अगर आप फोकस करेंगे तो ये जो कीवर्ड्स हैं, दीज कीवर्ड्स जो कि जनरेट करने पे आए हैं, अब आप ज्यादातर प्लेटफॉर्म्स पे एआई आ चुके हैं, इधर आपका व्हाट्सअप हो, इधर आपका कंटेंट राइटिंग के लिए हो, और आप इधर आप बोल लो गूगल एड्स आपके सामने लाइव एग्जांपल है, और फेसबुक है, आपको मिल जाते हैं एआई के लिए। तो हाँ, बट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, सी इन कीवर्ड्स हम लोग ने बिडिंग कितनी रखी थी, कॉस्ट पर क्लिक 15 रुपीज, 15 रुपीज अपनी बिडिंग थी। सी यहाँ पे सीपीसी कितना हो गया, 1.81 पैसा, 1 रुपीज 81 पैसा, दैट इज सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक। अगर कोई भी पर्सन, कोई भी विजिटर या कोई भी आपका कस्टमर यूज करता है दीज कीवर्ड्स को और हमारी एड शो होती है इन दैट टाइम पीरियड, अगर कोई बाय मिस्टेकन भी क्लिक करता है तो हमारा कितना बिडिंग डिडक्ट होगा, 1.81 पैसा। ठीक है, अभी देखिए एक काम गुड और इवनिंग। क्या, हेलो, हाँ बोलिए, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, हाँ बोलिए ना। Ma'am, I have a question regarding bidding. Can I ask? हाँ प्लीज। Ma'am, as we discussed earlier, that if we haven't decided a particular amount for bid, and we left it as blank only, so on what parameters Google will deduct the bid? Because previously we discussed that Google will deduct more also or less also. So are there any parameters Google follow या to deduct the डिपेंड ऑन योर कीवर्ड्स, कीवर्ड्स की जो डिमांड्स होती है ना, दैट विल बी हाई एंड लो, अप एंड डाउन रिगार्डिंग द एरिया और द सिनेरियो। फॉर एग्जांपल, दैट इज व्हाई गूगल ट्रेंड इज देयर, गूगल विल ट्रेंड यू शो, Google Trends will show you the keyword ki where the keyword, for example digital marketing keyword high demand in Pune and less demand in Gurgaon, so depending on the keywords demand according to your location, उसके accordingly आपका जो ये होता है ना CPC bidding Google डिडक्ट करता है। तो कीवर्ड्स की बिडिंग पे फिर वो करेगा। अगर आप बिडिंग नहीं पुट करते, जैसे मैंने 15 पुट किया था, और अगर आप वहां पे ब्लैंक कर देते हो तो सीपीसी आपका कीवर्ड की डिपेंडेंसी पे रहता है। अगर हाई डिमांडिंग कीवर्ड्स है तो हाई की क्या बोलते हैं आपका सीपीसी डिडक्ट होगा, इफ लेस डिमांडिंग कीवर्ड्स है तो लेस सीपीसी आपका डिडक्ट करेगा। जैसे कि अभी इनको वही हम आपको बता देते हैं एक तरीके से, इसको हम लोग सॉरी ये हम लोग रिमूव कर देते हैं, कंट्रोल एक्स, ठीक है, अपनी बिडिंग अभी रिमूव हो चुकी है। ठीक है, एक तरीके से अब चेक करते हैं हम लोग अपने कीवर्ड्स के लिए। डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस, अरे एक और चीज करते हैं, हाँ पे भी कर दिया, अपना कीवर्ड एसेट्स पे। ठीक है, अभी आप ही वाले क्वेश्चंस पे हम लोग वो कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमारी बिडिंग हमने वहां से रिमूव कर दी है और अभी हम लोग मैन्युअली यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे पुट करेंगे। बट प्लीज हेल्प मी कि कौन कौन से कीवर्ड्स पुट हो सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस, डिजिटल अब ये कौन से कीवर्ड्स है, देयर आर 5 टाइप ऑफ कीवर्ड्स ना, ब्रॉड है, एग्जैक्ट है, नेगेटिव है, कौन सा कीवर्ड है ये? broad? एग्जैक्टली। Yes, it is broad match. फॉर एग्जाम्पल इफ आई पुट नेगेटिव मैच, बेस्ट, दिस इज योर नेगेटिव मैच कीवर्ड। ठीक है, अभी आप देखना वहां पे आपका जो कीवर्ड है, अभी मेरा 1 रुपीज 78 पैसा हुआ है। ठीक है, नेगेटिव मैच कीवर्ड मीन्स मुझे इस कीवर्ड पे अपनी एड नहीं दिखानी है, दैट्स व्हाई मैंने वहां पे माइनस पुट किया है। और हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्स, ऑनलाइन
मार्केटिंग मार्केटिंग कोर्स। कोर्स। ऑनलाइन ये भी आपका कॉमन ही है, बट बहुत लोग ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। ठीक है, अभी हम लोग इतना ही कीवर्ड रखते हैं, बाद में देखते हैं आगे के कीवर्ड। बट हाँ, मैम, हाँ बोलिए। I didn't get that topic about कीवर्ड्स keywords, negative keywords and वो exact कोई keywords. बात नहीं, सी नेगेटिव कीवर्ड्स आर दोस कीवर्ड्स जिन कीवर्ड्स पे आपको अपनी एड को शो नहीं करना होता है। फॉर एग्जांपल, बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर डिजिटल मार्केटिंग, फॉर दिस कीवर्ड आई डोंट वांट कि मेरी एड क्या गूगल पे शो हो। दोज आर नेगेटिव कीवर्ड्स। क्लियर है नेगेटिव कीवर्ड्स? Yeah, Just ma'am. मुझे बताते चलेगा। ब्रॉड कीवर्ड्स आर दोस कीवर्ड जिसमें कि आप मिस स्पेल भी कर सकते हो। आप फॉर एग्जाम्पल कभी कभी जैसे मेरी टाइपिंग मिस्टेक्स बहुत होती हैं, इन दैट सिनेरियो ब्रॉड मैच इज द बेस्टेस्ट कीवर्ड फॉर द एड फॉर्मेट, बिकॉज ब्रॉड मैच में क्या होता है, जो ब्रॉड कीवर्ड भी आप बोल सकते हो उसको, या ब्रॉड मैच कीवर्ड भी बोल सकते हो। उस सिनेरियो में आप सेंटेंस, ठीक है, यू कैन यूज सेंटेंस, you can also do mistake while typing any word or something, तो उस सिनेरियो में आपकी एड क्या होगी, शो होगी। those are broad keywords, ठीक है, ये Okay. क्लियर है? Yeah. Yes. exact means accuracy. For example, if you put this like for example, enter bracket, big bracket, and you write digital marketing courses, let's consider, and bracket close. This is your exact keyword, exact match keyword, which means visitors को भी accurate digital marketing courses without any spelling mistake search करना होगा, तभी आपकी ad शो होगी। That is your exact match keyword. ये तीनों समझ में आ गया आपको? Yes, ma'am. Okay. Now there is one more type of keyword, that is your broad modifier keyword. That is, you have to choose two keywords. For example, plus digital plus, space plus marketing. So in that scenario, आप क्या कर सकते हो, डिजिटल एंड मार्केटिंग को आप सेपरेटली भी यूज कर सकते हो, ठीक है। बेस्ट वे टू मार्केटिंग, या फिर आप यूज कर सकते हो बेस्ट वे टू मींस बोल सकते हो, बेस्ट वे भी क्या बोल सकते हो, आप दोनों को अलग अलग कर सकते हो। इन शॉर्ट इतना सा है डिजिटल मार्केटिंग चलिए कंबाइनिंग एक वर्ड है, बट इन सम सिनेरियो आप डिजिटल मार्केटिंग को अलग अलग भी यूज कर सकते हो। तो दैट इज योर ब्रॉड मैच मॉडिफायर, बट इसको हम लोग यूज नहीं करते हैं यहाँ पे, इस वाले को। तो आप तीन तरह के कीवर्ड्स यूज कर, हाँ बोलिए। हम जैसे आप जाएगी अलग अलग से कर सकते हैं, जैसे कि डिजिटल कोर्स या मार्केटिंग कोर्स, ऐसे कुछ हाँ, पे। डिजिटल मार्केटिंग को एक कर दो या डिजिटल कोर्स को, हाँ जैसे आपने बोला कर सकते हो। तो उस ओके सिनेरियो ओके में क्या हो जाता है, उनका कहना सही है, एग्जांपल आपने सही दिया कि उस सिनेरियो में आप उनको सेपरेटली यूज कर सकते हो, मतलब अलग अलग भी यूज कर सकते हो। तो उनको आपने क्या किया, दो वर्ड्स को जस्ट एक ब्रेक कर दिया है। तो Okay, ब्रॉड okay, मैच yes. मॉडिफायर वो होता है आपका। बट यहाँ पे ज्यादातर आप एग्जैक्ट या ब्रॉड का ही यूज करो आप, जो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं। नेगेटिव का ऑप्शनल है, ठीक है, नेगेटिव ऑप्शनल है। एज आई टोल्ड यू कि इंडिया में इतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता है कि बेस्ट, चीप, मार्केटिंग इन सबको बोले, तो आप यूज कर सकते हो अगर आपको लगता है तो, अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये आपका है। तो अभी अपना सीपीसी हो गया ये, आप चाहो तो अपना प्रीवियस वाला भी क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो। तो अपना कहाँ से हो गया, ₹1.81 से आपका वन कितना हो गया, ₹1.77, 80 पैसा हो गया, एक ही पैसा कम हुआ है, छोड़िए। तो मतलब ये आपका हो गया कि अब अगर आप कोई बिडिंग चूज नहीं करते हो, आप बिडिंग पुट नहीं करते हो, उस सिनेरियो में गूगल कैसे सीपीसी डिडक्ट करेगा। तो गूगल कीवर्ड्स की डिपेंडेंसी पे क्या करेगा, जिस तरह के कीवर्ड की डिमांड चल रही होगी उस कीवर्ड पे वो पैसे डिडक्ट करना स्टार्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, लोग ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्स को ना बहुत मतलब एक्सट्रीम वे में सर्च कर रहे हैं, ठीक है, बहुत एक्सट्रीमली उसको सर्च कर रहे हैं।
तो गूगल ये करेगा भाई ये हाई डिमांड कीवर्ड बन चुका है, इस पे तो हमको अब ज्यादा पैसे निकालने हैं, तो वो 2, 3, 4, 5 जितना भी वो हो सकता है वो उतना पैसा उस पर डिडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। अभी समझ में आया ये कीवर्ड कैसा मतलब चलता है या कैसे काम होता है कीवर्ड का? यस मैम। ओके, अब बात आती है, अगर हम लोग स्क्रॉल डाउन कर दे, बट अभी भी हम ये बोलेंगे 10 या 15 कीवर्ड से ज्यादा आपको कभी भी यूज नहीं करना है एड में, कभी भी कीवर्ड स्टफिंग, बल्क कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी है। मिनिमम 10, मैक्सिमम 15, नॉट मोर देन दैट, हमेशा याद रखिएगा। अब अपना लास्ट सिनेरियो आता है जिसे हम लोग कहते हैं एड, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर योर कस्टमर्स, बिकॉज इसी पे कस्टमर्स विल डिसाइड वेदर योर कंपनी इज प्रॉफिटेबल फॉर देम और नॉट। तो इसलिए इसको जितना अट्रैक्टिव आप बनाओगे उतना ज्यादा आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा। ठीक है, अब चलिए इस पे आते हैं हम लोग। सो यहाँ पे एक चीज और, लैंडिंग पेजेस के बारे में हम लोग पहले बात कर लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे आपसे पूछा गया है यूआरएल, ठीक है, फाइनल यूआरएल। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर आप पर्टिकुलर किसी पेज के लिए कैंपेन कर रहे हो, वेब पेज के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पे जाते हैं स्ट्यू इंटर्न पे, दिस इज योर होल वेबसाइट, सी stewintern.com, दिस इज योर होल वेबसाइट एंड दिस इज द होम पेज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको डेडिकेटली अबाउट पेज के लिए एड रन करनी है, लेट कंसिडर, ठीक है ना। सो इन दैट सिनेरियो आपको सिर्फ और सिर्फ अबाउट का ही यूआरएल क्या करना होगा, पुट करना होगा, बिकॉज गूगल के लिए जैसे मैंने बोला कीवर्ड एंड एड फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसा ना हो कि आप क्या बोलते हैं, आप अबाउट अस का पेज देकर, आप अबाउट अस का मीन्स अपने इंडस्ट्री के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में बताकर और कस्टमर को किसी और वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर रहे हो, तो वो एक ट्रस्ट इशू क्रिएट कर देता है। और उसके बाद गूगल अपने प्लेटफॉर्म पे मतलब सर्च इंजन पे आपकी एड दिखाना बंद कर देगा, बिकॉज अगर कस्टमर सही बोल सकते हैं आप फॉर्मेट या कंटेंट पे स्विच नहीं कर रहे होंगे या रीडायरेक्ट नहीं कर रहे होंगे और उनको गूगल कुछ फिशी लगा आफ्टर की नहीं भाई इसने अब स्टूडेंट अबाउट अस पे तो कंटेंट लिख दिया है, हेडिंग एंड डिस्क्रिप्शन दे दिया है, बट ये रीडायरेक्ट किसी और वेबसाइट पे कर रहा है या फिर किसी और पेज पे कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल ट्रेनिंग पे कर रहा है, कोर्सेज पे कर रहा है या किसी मतलब फाइनेंस एंड अकाउंटिंग पे कर रहा है, उस सिनेरियो में गूगल कभी भी अलाउ नहीं करेगा आपकी एड को शो करना, आप कितना भी पैसे लगा लो। तो रिमेंबर, अगर आप पूरी वेबसाइट के लिए कर रहे हो देन आपका जो डोमेन है, फॉर एग्जांपल आपका ये जो डोमेन है .com, अगर आप इस पर्टिकुलरली अगर आप किसी वेब पेज के लिए कर रहे हो तो उस वेब पेज का ही यूआरएल आपको क्या करना होता है, पुट करना होता है, बिकॉज जैसा आपका हेडलाइन, जैसा कंटेंट, उसी के रिगार्डिंग आपका लैंडिंग पेज होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, अभी हम लोग स्विच करते हैं यहाँ पे और हम लोग यहाँ पे आते हैं अपने डिस्प्ले पाथ। सी डिस्प्ले पाथ ज्यादा कुछ नहीं, डिस्प्ले पाथ बस इसलिए होता है कि ये बताता है कि बेसिकली आपका बिजनेस किस चीज के रिगार्डिंग है। फॉर एग्जांपल जैसे स्ट्यू इंटर्न है, तो स्ट्यू इंटर्न आपका किसके लिए है, इंटर्नशिप के लिए है, इंटर्नशिप, सॉरी टाइप नहीं हुआ, इंटर्नशिप के लिए है, और यहाँ पे आप चाहो तो प्रोग्राम, इंटर्नशिप प्रोग्राम लिख सकते हो। ठीक है, तो ये जस्ट आपको एक पाथ बताएगा कि ये stewintern.com इज ओनली फॉर इंटर्नशिप प्रोग्राम, ये यूआरएल नहीं डिस्क्राइब करता है, दिस इज ओनली टेल्स यू द पाथ। चलिए अब यहाँ पे इसको हम लोग ऊपर करें पहले और स्क्रॉल डाउन। ठीक है, अब आता है अपने 3 टाइप ऑफ एक्सटेंशंस होते हैं, ये डिस्कस हुआ था। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटेंशन कह रहे हैं एक्सटेंशंस, दैट इज Yes, ma'am. योर साइट लिंक, कॉल एंड कॉल आउट। बिकॉज इससे क्या होता है, आपका सीटीआर रेट क्या होता है, इंक्रीज होता है। वैसे तो सीटीआर रेट गूगल के अकॉर्डिंग 10% इज द बेस्ट सीटीआर रेट, बट हर किसी का पॉसिबल नहीं है। बट अगर आपका 5, 6, 7, 8 यहाँ पे भी अगर आ रहा है, 5 से कम नहीं,
5 से ज्यादा अगर आ रहा है तो आपकी एड गूगल पे अच्छा परफॉर्म कर रही है। बिकॉज बहुत एक्सेप्शनली होता है कि कोई 10 CTR लेता आता है, उसको रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं, बट इन सम सिनेरियो ऐसा नहीं हो पाता, इसलिए 5 to 10 इज द बेस्ट। और अगर कोई पूछे एक्यूरेट, तो दैट इज CTR मींस क्लिक थ्रू रेट, मींस क्लिक अपॉन इंप्रेशन इन 200 एंड दैट इज 10%। चलिए हम लोग एक्सटेंशंस का यूज करते हैं। एक और चीज, एक्सटेंशंस अगर मैंडेटरी है देन यू हैव टू पुट, अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बट हाँ, एक्सटेंशन पुट करने से योर CTR रेट विल आल्सो इंक्रीज। फॉर एग्जांपल अगर आपको कॉल आउट ही यूज करना है तो यूज ओनली कॉल आउट इफ यू फील कि नेसेसरी सिर्फ कॉल आउट है। तो अगर आपको कॉल ही जरूरी है तो आप कॉल पुट करो, इफ यू वांट कि साइट लिंक होना चाहिए तो आप साइट लिंक करो, लेकिन डिपेंडेंसी पे रहता है। हम लोग यहाँ तीनों का यूज करेंगे, हम लोग को जानना है तो ठीक है। ये आपका फर्स्ट है कॉल। जस्ट सिंपली आपको एक फोन नंबर डालना है, तो हम एक रैंडम फोन नंबर यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ नीचे हम लोग क्लिक करेंगे, एक सेकंड इसको हम यहाँ पे क्लोज लेते आ रहे हैं। कॉल एक्सटेंशन आई थिंक उन सिनेरियो में ज्यादा यूज होगा जो लोकल बिजनेसेस होते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ओके दोनों के लिए यूज हो सकता है। ठीक है, कॉल पे आते हैं, कॉल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक नंबर पुट कर देते हैं हम लोग। वैसे तो हम लोग ने उस टाइम किया था, बट हम लोग एक न्यू पुट कर देंगे। तो इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे, यहाँ पे न्यू कॉल दिया हुआ है और हम लोग यहाँ पे अपना नंबर लेंगे। इंडिया 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 आई इंडिया एंड रैंडम फोन नंबर और कुछ नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 डिजिट्स का अपना नंबर हो चुका है। और आप इसको, बट ये तो मैंने रैंडम डाला है, बट आप लोग अपनी कंपनी का डालना और कुछ नहीं करना है एंड जस्ट सेव। कॉल इसलिए ज्यादा हेल्पफुल होता है कॉल एक्सटेंशन, बिकॉज रैंडमली अगर किसी, फॉर एग्जांपल हम लोग कभी टूर एंड ट्रैवल्स को सर्च करते हैं, ठीक है, कभी कभार आपको डायरेक्टली वो नंबर पे कॉल करने को ही बोलता है, आपको वेबसाइट्स पे जाने की भी जरूरत नहीं होती है, उससे भी CTR बढ़ता है। आप क्लिक करो चाहे ना करो, बट यू गॉट वन इम्प्रेशन, जिससे कि प्रॉफिटेबल चीज होती है। और जब आप क्लिक करके कॉल करोगे पर्टिकुलर नंबर पे, जैसे मेरा यहाँ पे पुट हुआ है, अगर आप देखोगे तो ये पुट हुआ है, तो अगर किसी को कॉल करना होगा रैंडमली कॉल कर सकता है। अगर, क्योंकि ज्यादातर हम लोग लैपटॉप्स पे नहीं रहते, मोबाइल फोन्स पे रहते हैं, जो कि हैंडी रहता है अपने लिए, इसलिए कॉल एक्सटेंशन अच्छा CTR देता है आपको। सॉरी, सेव करना भूल गए थे, सेव। तो ये फर्स्ट अपना कॉल हो गया। नेक्स्ट हम लोग अपना स्क्रॉल डाउन करते हैं, इसको डिलीट करते हैं और हेडिंग्स पे आते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि आपको हेडिंग्स को भी पुट करना होता है। यू हैव 30 कैरेक्टर्स। अगर आप उसको देखोगे, जो मैंने आपको एक माइंड मैप दिया है, मतलब जो शीट आपको PDF में मैंने दी है, उसमें मैंने पर्टिकुलरली पुट किया है कि हेडिंग्स में आपके 30 कैरेक्टर्स होते हैं और आपको मिनिमम 5 तो पुट करना ही करना होता है, बिकॉज आपको यहाँ पे दिया हुआ है 9 या फिर ऐसा, बट अगर आप 5 पुट कर देते हो तो उसका भी एक रीजन है। बिकॉज जितना ज्यादा आप हेडिंग्स और डिस्क्रिप्शन गूगल को प्रोवाइड करोगे, वो उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटीज क्रिएट करता है कि किस बोल सकते हो आप कॉम्बिनेशन पे, इन विच कॉम्बिनेशन ऑफ हेडिंग एंड डिस्क्रिप्शन आपको ज्यादा बोल सकते हो कि वो मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। तो इसलिए जितना ज्यादा आप हेडिंग एंड डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करोगे गूगल को, दैट विल बी प्रॉफिटेबल फॉर योर बिजनेस। तो अभी हम लोग यहाँ पे पुट कर दे, वैसे मिनिमम तो 5 पुट कर सकते हो, बट अगर आपको लगता है कि 9 देना ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यहाँ पे ऑलरेडी कुछ पुट है, जैसे कि इंटर्नशिप्स हम लोग खुद से ही पुट करते हैं, बहुत शॉर्ट है। हम लोग खुद से पुट करते हैं, इसको पहले रिमूव करते हैं। वन बाय वन सबको, चलिए। मैम, हाँ बोलिए। मैम जो ये आ रहे हैं ऑप्शन, ये सारे कीवर्ड की ऑप्शन है, टैग ऑप्शन, या मतलब कुछ और मतलब ये जो ऑप्शंस यहाँ पे हमने जो कोई कोर्स एक्सटेंशन ला रहे हैं, नहीं, कुछ नहीं, भी ऐड ये बना रहे एक्चुअली हैं?
ये जो एक्चुअली आ रहे हैं ना, बेसिकली हमने वेबसाइट का यूआरएल डाला है, ठीक है, यहाँ पे टॉप पे, ये एक सेकेंड, ये ओके ठीक है ना। तो ऑटोमेटिकली जो जो उनको अपने अकॉर्डिंगली गूगल को सही लग रहा है वो सजेशंस में आपको हेडिंग और वो दे दे रहे हैं। तो इसलिए आप खुद से पुट करो, वो ज्यादा बेटर है। ओके तो वो वहां से आपको फेच करके दे दे रहे हैं, इसलिए हम इनको रिमूव करके हम एटलीस्ट 2 तो यहाँ पे आप लोग को बता देते हैं, 2 और 3, तो आपको वो पता चल जाएगा कि कैसे वो कॉम्बिनेशंस को बिल्डअप कर रहा है। ठीक है, पहले तो मैम 4 तक हाँ बोलिए। ये हेडलाइंस भी हमारे बजट को इम्पैक्ट करती है। एग्जैक्टली करती So- है। सो 5 इज लाइक एन आइडियल टाइप, एंड अगर इसके ऊपर हम डालते हैं देन आवर बजट आल्सो इंक्रीजेस। बजट इंक्रीज नहीं होगा, 5 इज आइडियल होता है, बट बजट इंक्रीज तब होगा जब किसी कॉम्बिनेशन पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके कोई नंबर ऑफ, आपने फॉर एग्जांपल 5 हेडिंग्स दिया है, ठीक है, एंड 2 डिस्क्रिप्शंस दिया है, उस कॉम्बिनेशंस में जो कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट वर्क कर रहा होगा गूगल पे, उस पे आपका बजट इंक्रीज करेगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे 5 हेडिंग्स डाल दिया एंड 2 डिस्क्रिप्शन डाल दिया, और उस मतलब उनका कुछ ना कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस कुछ ऐसे बनाएगा वो, कि फर्स्ट हेडिंग को फर्स्ट डिस्क्रिप्शन से, या फर्स्ट हेडिंग को सेकंड डिस्क्रिप्शन से, ऐसे कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशंस को बिल्डअप करता चलता है। और जिस कॉम्बिनेशन पे ज्यादा उसको बोल सकते हो आप ट्रैफिक, या ज्यादा कस्टमर्स व्यूज मिलते हैं, क्लिक्स मिलते हैं, उस पे वो थोड़ा सा आपका बजट इंक्रीज करता है। वरना ये कुछ सिनेरियो में होता है, ज्यादातर में नहीं होता है बजट का। ओके हाँ, तो कितने लेटर्स, 30 कैरेक्टर्स डाल सकते हैं ना, ठीक है। मार्केटिंग, इन गुरुग्राम, ठीक है, बेस्ट प्रोग्राम फॉर फॉर समर एक्सीड कर दिया, बेस्ट प्रोग्राम फॉर दिस समर लिख देते हैं, बेस्ट प्रोग्राम फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर द ग्रेजुएट्स। और क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, प्लेसमेंट प्रोग्राम ऑल्सो डन, प्लेसमेंट program and certifications. ऑब्लिक डाल देते हैं, ज्यादा करेगा इसमें, ऑब्लिक स्पेस, कैसे ज्यादा स्पेस कर दें। ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक है, 3 हो गए। और गूगल सर्टिफिकेशन विल बी प्रोवाइडेड, गूगल सर्टिफिकेशंस वाइड रेंज ऑफ फील्ड्स, किक स्टार्टर करियर, ठीक है, हम लोग का यहाँ पे हो गया इस तरह से। अब एक चीज और, ये पैरामीटर्स को फुलफिल करते चलिएगा, यहाँ पे आपको ना रिव्यू देता है, इस पैरामीटर को थोड़ा सा फुलफिल करते चलिएगा। और यहाँ पे अभी पुअर था तो एवरेज पे अपना एड फॉर्मेट आ चुका है। और अब इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं,
ठीक है, यहाँ पे अपने डिस्क्रिप्शंस भी देखिए, उसने फेच कर लिया है ऑलरेडी वेबसाइट से। ठीक है, जो वेबसाइट पे जो भी कंटेंट होगा उसने फेच करके वो भी कर लिया है। आप चाहो तो खुद से भी पुट कर सकते हो या फिर फेच, अभी हम फेच वाला ही रखे रहते हैं यहाँ पे। और स्क्रॉल डाउन करेंगे, सेम एज अगर आपको बिजनेस लोगो, बिजनेस नेम या बिजनेस लोगो कुछ भी अगर आपका है तो आप वो यहाँ पे पुट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे दो और आपके बच्चे हैं, साइट लिंक और कॉल आउट, तो उसके अंदर हम लोग पुट करते हैं। फर्स्ट साइट लिंक हम आपको बताते हैं कैसे पुट होता है। सॉरी, प्लस पे जाएंगे एंड क्रिएट पे जाएंगे। मैम साइट लिंक पे क्या क्या डाल सकते हैं हम? साइट लिंक पे जैसे कि मानिए आपका प्रोग्राम जो अभी फॉर एग्जांपल जैसे स्टू इंटर्न का लेते हैं, स्टू इंटर्न में भी डिजिटल मार्केटिंग और एआई बूमिंग पे चल रहा है, मतलब इस पे ज्यादा, फॉर एग्जांपल कि अभी डिजिटल मार्केटिंग और एआई जो है इन लोग का न्यू कोर्स आया हुआ है और उसके लिए क्या कर सकते हैं, इनको एडमिशंस चाहिए। उस सिनेरियो में हम लोग क्या करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग और एआई का दो साइट लिंक और उसके रिगार्डिंग एक पेज हम लोग क्रिएट कर देंगे, जिससे कि क्या होगा कि जिन जिनको एआई और डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज को लेना होगा उस पे वो साइट लिंक की मदद से क्लिक कर देंगे। तो इन शॉर्ट साइट लिंक हेल्प करता है अगर कुछ न्यू, आप बोल सकते हो आप न्यू एड ऑन्स आ रही हैं चीजों में आपके मतलब बिजनेस में, या फिर आपने कहीं पे डिस्काउंट दिया हो या कुछ भी इस तरह का चीज है, तो उस टाइम पे आप साइट लिंक बना सकते हो। बट साइट लिंक दो से ज्यादा मत बनाइएगा, दो या चार, हमेशा आपके ये इवन नंबर्स में चलेंगे। ओके मैम। हाँ, जैसे कि अभी हम यहीं पे आपको बता देते हैं, डिजिटल मार्केटिंग साइट लिंक में भी लैंडिंग पेज उसी के पेज का होना चाहिए। ठीक है, जैसे इसमें डिजिटल मार्केटिंग और एआई और हाँ ठीक है, ये है डिजिटल मार्केटिंग हो गया। यहाँ पे गूगल सर्टिफिकेशन एंड यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं तो जैसे अगर मैं ई कॉमर्स का उससे रिलेट करूँ तो जैसे मेरे प्रोडक्ट बेस्ट का सेलिंग, फोटो। जी बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में मैं यहाँ पे डाल के और बेस्ट सेलिंग का ही लैंडिंग पेज का यूआरएल आएगा, राइट? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल करेक्ट। मार्केटिंग, अब यहाँ पे यूआरएल हम लोग पुट कर देंगे, जाएंगे यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग और इसका कॉपी, ये पेस्ट। आपको कोई डिजिटल मार्केटिंग पे क्लिक करेगा डेडिकेटली उस यूआरएल पे वो रीडायरेक्ट हो जाएगा, तो ये हमेशा आपका इवेंट में रहेगा। तो एक और हम लोग पुट कर देते हैं यहाँ पे, एक तरह से हम यूजर के लिए इजी कर रहे हैं ये चीज। एग्जैक्टली हम लोग यूजर को और चीजों को रिफाइन करके दे रहे हैं कि वी विल प्रोवाइड दिस थिंग ऑल्सो, इस तरह से। ओके। AI का एक सेकंड, मुझे भी थोड़ा देखना पड़ेगा। ये हो गया एंड क्रिएट, दो साइट लिंक हम लोग ने बना लिया। ये अपने दो साइट लिंक्स बन गए इनके रिस्पेक्टिव यूआरएल से एंड सेव। अभी एड एट द एंड हमारा दिखेगा कैसे वो भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो अभी हम लोग का एक लास्ट बच रहा है, दैट इज आवर कॉल आउट। दिस इज कॉल आउट। ठीक, अपना इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे और इसमें हम लोग जस्ट बुलेटिन पॉइंट्स डालेंगे। फॉर एग्जांपल व्हाट आर दी फीचर्स, जैसे साइटलिंग में ये डिफरेंस होता है कि साइटलिंग में आप यूआरएल देते हो बट कॉल आउट में यू बस आप बुलेटिन पॉइंट्स देते हो, जैसे कि आप क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हो। इन कॉल आउट आपको लिंक नहीं देनी होती है और साइटलिंग में आपको लिंक देनी होती है। डिजिटल
marketing, AI and machine learning, फिर data science, and for Java। ठीक है, ये एंड सेव। दोनों में डिफरेंस आपको पता चल जाएगा कि क्या है। अब साइट लिंक का ये देखिए, यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे ये ऐसे देता है, डिजिटल मार्केटिंग डॉट AI एंड ML डॉट डेटा साइंस फिर डॉट एंड कोर जावा। ये कॉल आपका कॉल आउट रहता है जो डिस्क्राइब करता है आपके डिस्क्रिप्शन के संगे कि अपार्ट फ्रॉम डिस्क्रिप्शन आप कौन कौन सी चीजों पे ज्यादा फोकस कर रहे हो, तो वो आपके कॉल आउट में आ जाते हैं। और इसको हम लोग अप्लाई कर देते हैं। ये अपना हो गया। आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, अगर आपको और भी चीजें जैसे नहीं हो तो आपको जैसे ऐड यूआरएल ऑप्शन, एज आई टोल्ड यू, ऐड यूआरएल ऑप्शन एंड कैंपेन यूआरएल ऑप्शन दोनों आपके सेम होते हैं। इसकी जगह पे दोनों आपके ट्रैकिंग के लिए काम आते हैं, बट स्टिल हम लोग यहाँ से यूज नहीं करेंगे, वी ओनली यूज रीमार्केटिंग कोड। सो अपना जो ऐड है वो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। हेलो मैम। हाँ बोलिए। मैम ये जो अपने कोर एक्सटेंशन आए हैं, कोर एक्सटेंशन, हाँ कॉल आउट एंड साइट लिंक, जी हाँ। हाँ साइट लिंक तो पता लग गया, और कॉल आउट नहीं पता लगा क्या बता उसमें करना। अभी देखिएगा, जैसे ये अभी रैंडमली चेंज हो रहा है, इसको हम पॉज करते हैं 1 सेकंड तो हम आपको बताते हैं। इसमें चले जाते हैं, थोड़ी सी ब्लर से अगर क्लियर किसमें दे रहा है। ठीक है चलिए पॉज कर देते हैं इसको। अभी देखिए 3 एक्सटेंशंस थे। दिस इज योर कॉल एक्सटेंशन, ये मोबाइल फोन का फॉर्मेट है, ठीक है। दिस इज योर साइट लिंक एक्सटेंशन कि आप पर्टिकुलर डिजिटल मार्केटिंग पे क्लिक करोगे, यू विल रीडायरेक्ट टू डिजिटल मार्केटिंग पेज, और आर्टिफिशियल यू विल रिस्पेक्टिवली आर्टिफिशियल पे। देन कॉल आउट, अगर आप ऑप्शन में, आपको अगर याद हो मैंने क्या क्या लिखा था, डिजिटल मार्केटिंग, कोर जावा, AI एंड मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस, ये पॉइंट्स लिखे थे। तो वो आपके हमेशा डिस्क्रिप्शन के ही अंदर में रहते हैं। तो दिस इज योर हेडिंग, दिस इज योर डिस्क्रिप्शन। और अगर आप यहाँ पे देखोगे, इसको हम थोड़ा सा और वैसे कर दें, सी कोर जावा, डेटा साइंस, AI, मशीन लर्निंग एंड डिजिटल मार्केटिंग, दिस इज योर कॉल आउट। तो कॉल आउट कैसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो कि आफ्टर ईच लेटर कंप्लीट हो या वर्ड कंप्लीट होने के बाद वहां पे एक डॉट लगता है, जैसे कि कोर जावा डॉट डेटा साइंस डॉट AI एंड मशीन लर्निंग डॉट एंड डिजिटल मार्केटिंग डॉट। तो ये आपका कॉल आउट है जो कि इन्वॉल्व होता है डिस्क्रिप्शन के साथ। समझ में आया तीनों कैसा आपका दिखेगा? दिखने पर तो ये यहाँ से क्लिक होने के बाद भी कहीं डिटेक्ट होगा तो वैसे ही मतलब नहीं है ये कीवर्ड। आप बस 2 पे क्लिक कर सकते हो। 2 पे क्या क्लिक कर सकते हो, मतलब एक्सटेंशन में सिर्फ 2 पे क्लिक कर सकते हो, जो कि आपका ये है साइट लिंक है, और सॉरी जो साइट लिंक है और आपका कॉल है। बट आप कॉल आउट पे क्लिक नहीं कर सकते हो। कॉल आउट आपका जस्ट एक डिस्क्रिप्शन का पार्ट आ जाता है वहां पे। ओके ओके ओके, मतलब हमारे पास और एक्स्ट्रा सर्विस जो है वो हमने यहाँ पे ऐड कर दी कि हाँ उसको आपने बुलेटिन पॉइंट्स में बता दिया है बस। ओके कॉल आउट है। अब यहाँ पे आपकी एड कंप्लीट हो जाती है। अब ये जो अगर आप प्ले करोगे ना, तो जितने भी हम लोगों ने वो पुट किए हैं, मतलब हेडिंग्स जितनी यूज की हैं, जितने डिस्क्रिप्शंस यूज किए हैं, तो अगर आप इसको प्ले करोगे तो ये देखिए आपको वैसे ही दिखाई देगी चेंज हो के। अभी आप स्क्यू इन टर्न है और गेन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, फिर ये चेंज होगा, फिर इसका कुछ अलग बोल सकते हो आप, हेडिंग एंड डिस्क्रिप्शन आएगा, सारी चीजें इसकी अलग अलग होती जाएंगी। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि ज्यादा जितना आप हेडिंग एंड डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करेंगे उतना प्रॉफिटेबल आपके बिजनेस के लिए रहेगा, एज वेल एज आपको CTR के लिए भी रहेगा। बिकॉज CTR अच्छा होगा तो गूगल ऑटोमेटिकली आपके एड्स को और अच्छे से ऑप्टिमाइज करेगा एंड वो हेल्प करेगा फर्दर चीजों के लिए। अगर ये अपना हुआ, अब इसके बाद हम लोग अगर नेक्स्ट करेंगे, लास्ट अपना आता है पेमेंट मेथड। मैम हाँ
ये सारे एक्सटेंशंस यूज करना जरूरी है या फिर इट डिपेंड्स ऑन व्हाट द क्लाइंट? डिपेंड्स, डिपेंड। ये तीनों हमने इसलिए बताया कि यूज होने पे दिखते कैसे, ऐसे डिपेंडेंसी रहती है कि आप लोग को क्या रिक्वायरमेंट है। बस हमने ये बताया कि यूज आप कर सकते हो और किस तरह से कर सकते हो, और ये क्लाइंट के ऊपर है। और क्लाइंट के ऊपर भी क्यों रहेगा, ये आप डिसाइड करोगे कि क्लाइंट आपको पैसे दे देगा और बता देगा, आप डिस्कस कर लोगे, ठीक है। फिर उसको चाहिए प्रॉफिट। अब प्रॉफिट आप कैसे ला रहे हो वो आपके ऊपर रहता है कि कॉल आउट से आ रहा है कि कॉल से आ रहा है कि मतलब नहीं, आपका ये तीसरा क्या था, साइट लिंक है, किससे आ रहा है वो आप पे रहता है। तो वो हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं या फिर हाउ डू सबसे वी ज्यादा, सबसे आइडेंटिफाई? अच्छा, सबसे अच्छा आपका ये रहता है, आप कॉल आउट तो ले सकते हो, कॉल आउट इतना कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रहा है, वो बस आपके उसके अंदर है। कॉल एक्सटेंशन आपको ज्यादा सीटीआर देता है। अगर सर्विस बेस्ड कंपनी है तो यूज कॉल एक्सटेंशन, और अगर प्रोडक्ट बेस्ड है यूज साइट लिंक, और कॉल आउट कॉमन है। ओके। सो बेसिकली नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करेगा ये। एग्जैक्टली exactly, हाँ, आपका वो रहेगा। अब यहाँ पे देखिए एक और चीज भी है, आपको ये बजट दे दिया है कि आपको 589 रुपीज 39 पैसा है, रिकमेंड किया है इतना, या फिर इतना, और या फिर कस्टम आप अपने अकॉर्डिंगली भी कर सकते हो। वैसे कस्टम ज्यादा बेटर रहता है कि आपका बजट, ये तो आपको बता दें क्योंकि हम लोग ने बहुत रिफाइन वैसे किया है कि 500 और ऐसे करके, बट आप अपना यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरा 1000 रुपीज है पर डे का, तो वो आपको बता देगा कि कितने दिन का आपने कैंपेन रन करना है, वीकली कॉस्ट कितना पड़ेगा, सीपीसी कितना आपका जाएगा, और आपका ये वीकली क्लिक्स आपको कितने मिलेंगे इतने बजट में। तो जितना अच्छा बजट होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। अब यहीं पे अगर आप 2000 ले लो, 2000, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सर्च नेटवर्क ऐड कंप्लीट होता है। दूसरी चीज ये है कि मुझे आप लोग में से किसी एक की स्क्रीन जस्ट 5 मिनट्स के लिए शेयर करवानी है, जस्ट बिकॉज इसलिए कि किन्हीं ने कल पूछा था कि अकाउंट कैसे गूगल एड्स पे क्रिएट करें, बिकॉज टेक्निकल और ऑफिशियल वे में यू हैव टू पे 20,000 टू गूगल, जिससे कि आपका एड क्या होगा, क्या बोलते हैं, गूगल एड्स आपका क्रिएट होगा, मतलब आपका जो अकाउंट है वो बनेगा। और ये अभी वहां पे देखिए आपका ये साइन इन का ऑप्शन आ रहा है टॉप राइट कॉर्नर में, साइन इन। हाँ, जस्ट साइन इन, स्टार्ट नाउ के ही साइड में देखिए साइन इन लिखा हुआ है। नहीं 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 बेशा, ऊपर देखिए साइन इन लिखा है ना, व्हाइट कलर के बॉक्स के अंदर। हाँ, क्लिक करिए यहाँ पे साइन इन पे। हाँ एग्जैक्टली यहाँ पे क्लिक करिए साइन इन पे।
आपका ऑलरेडी क्रिएटेड है क्या? नहीं, जिनके में बिल्कुल भी नहीं हो, जिनका फ्रेश जीमेल है ना, प्लीज वही बताएं मुझे एक बार। जैसे इनका ऑलरेडी है, जो कि चलिए अच्छा है, लेकिन जिनका एकदम फ्रेश जीमेल है प्लीज वो शेयर करें। जिनका अभी तक नहीं बना है जिस पे गूगल अकाउंट, आप स्टॉप कर लीजिए। दुष्यंत, आपका बना है तो ये अच्छी बात है, बट आप स्टॉप एक बार कर लो प्लीज। हाँ, लीव कर दीजिए एंड स्टॉप कर दीजिए आप। कोई ऐसा है प्लीज? बिकॉज मुझे मतलब अगर अभी नहीं है तो प्लीज नेक्स्ट सेशन में प्लीज कोई भी स्क्रीन शेयर कर लेना, क्योंकि जैसे इनका बना है जो कि बहुत अच्छी बात है, बट अगर किसी का नहीं, जिसका एकदम फ्रेश अकाउंट है, तो मुझे उन पे बस एक छोटा सा स्टेप बताना है जो आप फॉलो कर सको उस टाइम पे, पीरियड पे। श्वेता, आप करेंगी क्या? प्लीज शेयर कर लीजिएगा। यस मैम, मैं करती हूँ। जी। हेलो हेलो मैम। हाँ बोलिए दुष्यंत। मैम एक्चुअली मैंने बनाया जरूर, मतलब था जरूर, पर वो बहुत पहले बना था, कई सालों पहले। मैंने कभी यूज भी नहीं करा उसको। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका अगर है तो आप लकी हो उस चीज में। वो उसी पे आप काम करना। ठीक है। हाँ श्वेता, आप विजिबल है एक बार। स्क्रीन? जी हाँ, सबको, हाँ सॉरी, मुझे विजिबल है, आप सबको विजिबल है क्या स्क्रीन इनकी? यस मैम। ओके। तो मे बी आपने ट्राई किया होगा, एक बार आप साइन इन पे जाना हाँ, और मैं ट्राई देखिए कर रही थी आपसे। हाँ, तो आप एक बार जाइए और उसमें आपका पेमेंट पूछा होगा उस जगह पे। हम्म। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस अकाउंट को डिलीट करेंगे। अकाउंट मतलब हर एक अकाउंट का एक गूगल ऐड अपना एक नंबर देता है। अगर आप श्वेता के स्क्रीन पे राइट कॉर्नर में अगर आप देखोगे, जहाँ पे एस लिखा, नाम लिखा है उनका, और उसके ऊपर एक डिजिट्स में नंबर लिखे हैं 288 स्पेस, या देखिए उन्होंने हाईलाइट किया है। तो इसको हम लोग अभी डिलीट करेंगे, ठीक है? तो एक काम करिएगा श्वेता, जहाँ पे एस आपका सिंबल दिया है ना गूगल जीमेल का, क्लिक करिए और देखिए वहाँ पे डिलीट का ऑप्शन दिया डिजिटल मार्केटर के साइड में, जस्ट डिलीट कर दो आप इसको, रिमूव इट। अगेन साइन इन करिए। ये प्रोसीजर थोड़ा सा प्लीज फोकस करिएगा। जब भी आप लोग गूगल एड सर्च करेंगे अपने न्यू टैब पे, फिर आपको साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद जैसे श्वेता के जो पेज ओपन हुआ है, सिमिलर आप लोग के पेजेस ओपन होंगे। तो सिंपली आपको न्यू गूगल एड अकाउंट पे क्लिक करना है। इसके बाद देखिए ये जो पॉपअप बॉक्स इनका ओपन हुआ है, इसको स्क्रॉल करेंगे क्या? थोड़ा स्क्रॉल होगा क्या ये पेज? ये नहीं हो रहा मैम, स्क्रॉल ऊपर की यही देखो, इतना ही दिख रहा है। जो आपका ये क्रिएट योर, कहाँ वो चला गया? चला गया। फिर से आप डिलीट करो उसको, सेम प्रोसीजर फॉलो करो, क्योंकि उसके नीचे आता है हेलो ना स्विच करके एक ऑप्शन। हाँ बोलिए। हेलो। या हाय मैम। मैम मैं ये पूछ रहा था कि अभी क्लास और है या कैन आई नहीं नहीं, लीव ये द कंप्लीट हो सेशन? गया एक्चुअली। बस ये ओके आपको गूगल ऐड के अकाउंट का बता रहे हैं कि कैसे आप बना सकते हो ओके। अपना मेरे डमी पास अकाउंट। है, पहले से हाँ अकाउंट है मेरे चलेगा, कोई पास। प्रॉब्लम नहीं, आप लोग लीव कर सकते हैं, फिर जिनका है वो ओके मैम, लीव थैंक कर यू। सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू। क्रिएट योर अकाउंट। एक्चुअली पता है आप लोग मेरा एक बार इसको रीलोड करेंगे क्या इस पेज को? बिकॉज जो क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन है ना, इसी के जस्ट नीचे एक स्विच अकाउंट का ऑप्शन आता है। रीलोड करने से तो ये हो रहा मैम। कोई दूसरा जीमेल है आपका? मैम मैम, इसके नीचे एक वो आ रहा होगा, स्किप कैंपेन क्रिएशन, उसको एग्जैक्टली skip करके एग्जैक्टली, उसी हो पे क्लिक जाएगा। करना है। हाँ उसी पे क्लिक करना है, स्किप करके मेरे जो को वो आ आता रहा है। है। तो जिसका आ रहा है उनकी शेयर करवा दीजिए फिर हाँ अभी। हाँ, आप स्टॉप करो, आप शेयर करो एक बार। बट मैम मैंने जो मीटिंग ली है वो फोन पे ली है, पीसी में अलग प्रैक्टिस कर रहा था, टाइम लगेगा मेरे को 2 मिनट। अच्छा ठीक है, हम एक काम करते हैं, मेरे पास एक कैंप उसका एक वीडियो है, शॉर्टकट उसका, तो वो हम शेयर कर देंगे आप लोग के संग, जो कि आप लोग के लिए इजी हो जाएगा। चलेगा वो चीज आप लोग को? ओके मैम, करेंगे। थैंक यू। अगर स्किप ऑप्शन नहीं आ रहा है तो फिर क्या करना है? हाँ, इन केस अगर स्किप ऑप्शन नहीं आ रहा है तो ट्राई विथ योर डिफरेंट ईमेल आईडी। मैम और क्या ना, अगर तब भी नहीं आ रहा है स्किप ऑप्शन, तो आप मुझे स्क्रीनशॉट एक बार उस चीज जैसे जो श्वेता में आ रहा है ना, आप मुझे फिर से बताना। तो उसके भी रिगार्डिंग हम लोग एक दूसरा मतलब ऑल्टरनेटिव सर्च करेंगे, ठीक है? थैंक यू श्वेता, थैंक यू सो मच। ओके मैम, थैंक यू।
चलिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।